is 3 o'clock. Hello everyone. Can you guys hear me? Check. Good afternoon, Jasleen. Chat. Hi Rutvik. Hi Jasleen. Hi Ria. Awesome. Everybody here. Let me see. Hi Ananya. We are still waiting for people. Okay. यार तब तक अपने फॉर्मूले का वो बना लो लिस्ट और भेज दो वहाँ ग्रुप पे. Aryan has sent and Jasleen has sent. Everyone else also please do that quickly. तो फॉर्मूले ही हैं सारे चैप्टर्स में. फटाफट फॉर्मूले याद करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ. ठीक है, चलो कर लो. I'll just be back. Okay, all right. I think everybody is here now. Let's start. So we'll continue with that chapter, magnetism and matter. खत्म हो जाएगा अभी फटाक से. Then we'll do some practice questions and then we'll see if you want to start electromagnetic waves. That is also a small chapter. ठीक है, चलो I'll share the screen. Who is this person who sent us this thing right now? Vandu. Oh, that's Ria. Okay. बाकी लोग भी फटाफट भेज दो यार फॉर्मूले वगैरह. चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं. Ready? Okay. ठीक है. So Earth का magnetism. चलो. 1600 Sir William Gilbert was the first to suggest that the Earth itself is a huge magnet. Earth behaves as if a powerful magnet is placed within it. Okay. The magnetic field of the Earth is now thought to be arisen due to electrical currents produced by convective motion of metallic fluids. Okay, of iron and nickel in the outer core of the Earth. This is known as the dynamo effect. So why is there magnetism in Earth? Because of the movement of metallic fluids. It's called dynamo effect. तो ये एक बार लिख लो अपनी कॉपी पे just in case so that you remember. लिख लो dynamo effect. Dynamo effect. What is dynamo effect? Magnetic field of the Earth as in due to the electrical currents produced by convective motion of metallic fluids of iron and nickel. These questions can be helpful for objective exams. Okay, done? Once you're done noting it down, then you can raise your hand.
Okay, Priya Aryan done. ठीक है, मोस्टली पीपल हैव डन. तो आगे बढ़ते हैं. Okay, characteristics of Earth's magnetic field. The magnetic field lines of the Earth resemble that of a hypothetical magnetic dipole located at the center of the Earth. The axis of the dipole is presently tilted by approximately 11.3 degrees with respect to axis of rotation of the Earth. ठीक है. तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वैसे भी टिल्टेड है, और सो बेसिकली या तो वहां से 11.3 डिग्री टिल्टेड है. ठीक है. द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज लोकेटेड एट ब्ला 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 ब्ला. ओके, ठीक है. अब ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन. सो ज्योग्राफिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो ये है. तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ है वो कौन सा हो गया? अगर ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ हो गया. तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंटेन करने वाला एक वर्टिकल स्लाइस, this will be the geographic this will be the geographic equator. Meridian will be this vertical, right? Which one will be meridian? Which one will be meridian? Right. So this one is equator, which is horizontal. The vertical one, so इस वाले केस में this is geographic, so this will be geographic meridian. Okay, this will be geographic meridian and this will be magnetic meridian. ठीक है. और ये geographic equator हो गया और ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया. ठीक है, डन. इसको भी नोट कर लो फटाफट. डन. ठीक है, चलो. अब ये वाला पार्ट है जहां से सवाल आ सकता है. यहाँ पे हर बारी यहाँ से सवाल आया हुआ, हर साल इनफैक्ट आया हुआ. तो यहाँ इसको ध्यान से सुन लो क्योंकि इस पे पक्के से सवाल आएगा. ठीक है. ओके, नाउ सपोज दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो अगर इसको तुम देखोगे तो इसका आधे वाला पार्ट हम ले रहे हैं, ये और ये. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी आर टेकिंग राइट नाउ. दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन. तो इतना पार्ट ले रहे हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन का और इतना पार्ट ले रहे हैं इसका मैग्नेटिक मेरिडियन का. ठीक है. So here you can see that they are at a certain angle, right? So this is what this is. So now we'll just work along with this particular diagram. Okay, then it'll be easier for us to calculate. So this one is geographic meridian. This one is magnetic meridian. Okay. हाँ, इसके बाद बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बट इससे सवाल आते हैं तो इसलिए ध्यान से इसको नोट कर लेना. ठीक है. लोअर योर हैंड. All right. So the physical quantities that determine the intensity of Earth's total magnetic field completely, both in magnetic direction, are called magnetic elements. There are 3 magnetic elements of the Earth as given below. Okay. Magnetic declination, or simply the declination at a place, is the angle between the geographic meridian and the magnetic meridian. It is denoted by theta. तो ये नोट कर लो. ये पहले डायग्राम बना लो उसको.
तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गया, और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है ये हो गया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये बस टर्म्स याद हो जाए तुमको, उसके बाद आगे बहुत ही सिंपल है ट्रिग्नोमेट्रीज की, बट इतना टर्म्स याद कर लेना कि कौन सी चीज क्या कहलाती है। सो दिस पर्टिकुलर थीटा is magnetic declination, which is the angle between geographic meridian and magnetic meridian, denoted by theta. लिख लो। डन। Magnetic inclination or dip at a place is defined as the angle made by the direction of Earth's total magnetic field with the horizontal direction. It is denoted by delta. So यहाँ पे ये जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है ये वाली अर्थ की, तो हाउ मच इट इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल, दिस पर्टिकुलर एंगल डेल्टा, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिप। डेल्टा नोट कर लो। डन। इतना नोट हो जाए तो हाथ उठा देना। तो पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लो। इसको मैं हटा देता हूं मेरा इधर से। ये ड्रॉ हो जाए तो हाथ उठा देना। ये पॉइंट एल है, वो एल नहीं है, ये पॉइंट एल है। ये वाला पॉइंट एल है। हो जाए तो हाथ उठा देना। और ये सब जब कर लोगे तो आज क्लास के बाद ये नोट्स की एक ऐसी फोटो खींच के भेजना मेरे को, ठीक है? तो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग ऑल दीज नोट्स राइट नाउ। एक बार इसको बना लोगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं बस, वो याद रखना है और विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो डन, आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक डिप क्या हो गया? मैग्नेटिक डिप इज दिस angle which the total magnetic field of the earth is making with the horizontal, right? And magnetic declination is what? The angle between the geographic meridian and magnetic meridian. Okay, horizontal component of the earth's magnetic field. Okay, so बहुत इसमें ये पता नहीं, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। b is equals to रूट ओवर ऑफ हॉरिजॉन्टल b एंड वर्टिकल b का स्क्वायर, है ना? तो दिस इज हॉरिजॉन्टल बी, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये टोटल बी है। इसके दो कंपोनेंट हो गए, के दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला वर्टिकल बी हो गया और एक ये वाला हॉरिजॉन्टल बी हो गया। तो ये बी एच हो गया, ये बी वी हो गया। तो बी कितना होगा? बी विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, है ना? नोट कर लो उसको। बी इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। हो गया? आगे
और BV इज इक्वल टू क्या होगा, तो BV इज इक्वल टू B साइन डेल्टा, है ना, ये सब। तो B वर्टिकल इज इक्वल टू B साइन डेल्टा एंड B हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू व्हाट, B हॉरिजॉन्टल कितना होगा B के टर्म्स में, B Because theta. correct. Jasleen and Rutvik, all right. Jasmine also, Ananya also, right. Cos delta, theta नहीं होगा अनन्या, cos delta, theta अलग है, ऊपर है theta. B cos delta इधर हो गया BH, ठीक है। तो BH इज इक्वल टू B cos delta, BV इक्वल टू B sin delta, ठीक है, नोट कर लो। और tan delta इज इक्वल टू BV by BH, ये भी नोट कर लो। tan delta is equals to BV by BH. Tan delta equals to BV by BH. Aryan, are you saying something? No, I can't hear you. What are you saying? Oh, acha, I think I did not put this on. Wait. हाँ बोलो आर्यन, क्या? What are you saying? अभी I'll be able to hear. Just say what you're saying. Sir, I was also saying because delta only, but अच्छा, I think you couldn't hear. Yeah, my this thing was not on. Okay. ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल। तो ये हो गया tan delta equals to BV by BH, ठीक है। ओके, neutral points are where the net magnetic field due to the magnet and magnetic field of earth is zero, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रहा है और तुमने कोई और सोलेनोइड लगा के इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो टोटल जीरो हो जाएगा, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, न्यूट्रल पॉइंट। ओके, अच्छा, कंपास नीडल को अगर तुम पोल पे लेके जाओगे, है ना, तो पोल पे कैसा होता है, पोल पे तो वर्टिकल बनेगा उसका फील्ड लाइन, है ना, समझ रहे हो। देखो मैं ऐसे बना देता हूँ। तो यहाँ पे अगर तुम अर्थ को इसके मैग्नेटिक पोल पे लेके जाओगे, सपोज ये मैग्नेटिक पोल है, तो यहाँ पे तो ऐसा बन रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बन रही है। तो यहाँ पे अगर कोई तुमने ऐसे रखा हुआ है कंपास को, तो वो ऊपर नीचे दिखाना चाहिए उसको, लेकिन तुमने तो उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि सिर्फ वो हॉरिजॉन्टली घूम सकता है, वर्टिकली नहीं घूम सकता, तो वो कहीं भी घूम जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको अगर तुमको पता करना है तो उसके लिए तुमको ऐसे वर्टिकली रखना पड़ेगा अपने कंपास को, ठीक है, वहां के लिए। तो ये Sir, लिखा one हुआ है, question. बोलो। Sir, about that neutral point. So, अगर अपन ने कोई neutral point ऐसे create किया तो वहां पे net magnetic field जो है वो zero हो जाएगा, right? हाँ, So वहां पे कुछ gravitational force भी नहीं रहेगा क्या? मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन फोर्स का क्या रिलेशन है? सर, सो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ग्रेविटेशन है ना? नहीं भाई, हम थोड़ी मैग्नेटिक लोग हैं। अर्थ में ग्रेविटेशन है बिकॉज ऑफ मास, ओ ओके 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 ओके, और सॉरी सर, मैग्नेटिक सॉरी, फील्ड है बिकॉज हमारे कंफ्यूज हो अर्थ में लिखा हुआ है ना आयरन निकल और वो सारी चीजें, गया। यस अगर सर, यस सर। नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, इफ द कंपास इज टेकन सर, इज दैट द मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक पोल, विच वन रिया? Which one are you asking, Riya? Magnetic or geographic pole? The one in the diagram जो मैंने बनाया था, that was the magnetic pole, क्योंकि वहां से मैग्नेटिज्म की बात करें ना तो मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। If the compass is taken to the magnetic pole, ये देखो लिखा magnetic pole, then the field lines get converge or diverge vertically, so that the horizontal component is negligible. If the needle is only capable of moving in a horizontal plane, it can point along any direction. In such a case, a dip needle is needed, which is actually a compass pivoted to move in a vertical plane containing the magnetic field of the earth. The needle of the compass shows the angle which the magnetic field makes with the vertical, ठीक है।
तो बेसिकली ऐसा रहेगा। तो हाँ ये वर्टिकल है, तो अगर ऐसा दिखा रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी जा रही होगी, ऐसी जा रही होगी, है ना। तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है ये दिखा रहा है वो उधर, है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा। ठीक है, चलो चलो ये वाला सवाल करो अब। Do this question. A vertical component of Earth's magnetic field as a place is 0.24 root 3 into 10 to the power minus 4 Tesla. Find out the value of horizontal component of Earth's magnetic field if angle of dip at that place is 30 degree. Angle of dip मतलब वो जो horizontal से angle बना रहा है वो 30 degree है ना। चलो बताओ। ओके, lot of you giving the answer। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, बीवी मिल गया तुमको, है ना। बीवी इतना है, डेल्टा इतना है। फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल, बी एच निकालना है तो tan डेल्टा से निकाल लो, है ना। हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा 0.72, है ना। चलो अगला वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो, a magnetic needle suspended in a vertical plane at 30 degree from the magnetic meridian makes an angle of 45 degree, है ना, with the horizontal। इसको थोड़ा विजुअलाइज करने में इशू होगा, तो बेसिकली ये कह रहा है, देख लो यहाँ पे। तो ये उसका मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, और इस वाले प्लेन पे उस कंपास को हमने घुमाया हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड इन द वर्टिकल प्लेन इन दिस वन। ठीक है, इन वर्टिकल प्लेन एट 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना। फाइंड द ट्रू एंगल ऑफ डिप। ट्रू एंगल ऑफ डिप मतलब वो जो ओ एच है वहां से कितना एंगल बनेगा उससे बना। चलो करो। इसमें बात यह है कि ये बीवी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो बताओ, फिर मैं समझाता हूं, और बन रहा है तो बना लो।
नॉट गेटिंग इट, ओके। और किसी को नहीं बन रहा तो हाथ उठाओ। देखो हिंट है कि बीवी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये जो बी एच डैश है, सपोज इसको हमने एच डैश लिया और ये वाला एच है ना, तो एच डैश अगर ये 30 डिग्री पे, तो बी एच डैश कितना हो जाएगा, बी एच अगर ये है तो बी एच डैश हो जाएगा बी एच कॉस 30 डिग्री, प्रोजेक्शन हो गया उसका, है ना। सो आई विल जस्ट राइट इट हियर, बी एच डैश इज इक्वल्स टू बी एच कॉस 30 डिग्री, है ना। अब ये 45 है, इसका मतलब tan 45 इज इक्वल्स टू बी एच डैश अपॉन बी वी। तो बी वी कितना निकला, tan 45 1 है तो बी एच डैश ही निकला, बी वी इज इक्वल्स टू बी एच डैश। अब ये वाला जो एच के साथ जो बनाया है ये ये एच है अगर, और वो पूछ रहा है कि ट्रू एंगल ऑफ डिप कितना होगा, और ये बीवी है, वो तो कांस्टेंट ही है, तो ये कितना होगा, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू बीवी, और ये गलत कर दिया ना मैंने, हाँ मतलब ये गलत है क्योंकि बीवी बाई बी एच डैश होगा, ये tan 45 इज इक्वल्स टू बीवी बाई बी एच डैश निकलेगा सेम ही। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में? कम टू द माइक गाइस। Yes, understood. हाँ, Understood, तो understood. tan 45 इज इक्वल्स टू बीवी बाय बी एच डैश, है ना, तो बीवी इक्वल्स टू बी एच डैश हो गया, यहाँ से डन। यहाँ पे क्या होगा, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू, बताओ जिनेन, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू, BV by BH. करेक्ट, ठीक है। अभी बी एच डैश की वैल्यू लिखिए बी एच कॉस 30, तो इसको लिख लेते हैं बी एच कॉस 30, है ना। तो यहाँ पे बीवी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीवी की जगह लिख सकते हैं बी एच कॉस 30 अपॉन बी एच, है ना, tan डेल्टा, बी एच कट गया, तो फिर यहां से आ जाएगा कुछ, हाँ आया, Yes, ओके। मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। कॉस 30 कितना हुआ वैसे, हाँ Q3 by root 2. 3/2. उसका tan कितना होगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो यहाँ पे सोल्यूशन देख लो, वही है tan इनवर्स ऑफ cos 30, है ना, 41 डिग्रीज आया, ठीक है। सोल्यूशन में एक मिस्टेक है यहाँ पे, तो उसको मैं क्या वाइट से कर देता हूँ, दिस इज थीटा नॉट थीटा डैश। अब तुम खुद से सॉल्व कर लो, और अगर कुछ डाउट लगे तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, कर लो, जब हो जाए तो हाथ उठा देना। हो जाए तो हाथ उठा देना।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। एक बात बताओ, एनीबॉडी, सर्कुलर लूप में या टोरॉइड में या किसी में भी कितना होता है उसका बी, कितना होता है? उसके अंदर बी कितना होता है? ठीक है, म्यू नॉट एन आई होता है ना। एन क्या है? व्हाट इज एन? म्यू नॉट एन आई में एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स वो नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द केपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस is measured in terms of magnetic intensity of the field, ठीक है। The magnitude of magnetic intensity may be defined as the number of ampere turns flowing around the unit length of toroid to produce magnetic induction B naught in the toroid, ठीक है। तो number of turns per unit length into mu naught क्या होता है? into I, वो अपन को वो B naught मिल जाता है, राइट। सो B naught is equals to mu naught NI, so Ni is equals to B naught by mu naught. So magnetic intensity is given by Ni, ठीक है, number of turns per unit length into I, ठीक है। So that is magnetic intensity. अब इसको नोट कर लो, magnetic intensity H is equals to B naught by mu naught. जितना भी magnetic induction है B naught upon mu naught gives you magnetic intensity. That is also the number of ampere turns flowing around the unit length of toroid. तो ये अगर just in case, you know, for definition, so you can note this also. का यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर, बिकॉज n इंटू आई, तो ये दिस इज पर मीटर, इसका यूनिट है पर मीटर, इसका यूनिट है एम्पियर, तो इसका यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर, है ना। यू कैन ऑल्सो से h इज इक्वल टू n इंटू आई, दिस इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये कुछ टर्म्स याद करने पड़ेंगे। मैग्नेटिक इंटेंसिटी h इज इक्वल टू बी नॉट बाय म्यू नॉट, बी नॉट बाय म्यू नॉट, ठीक है। डन, आगे बढ़े। यस। ओके, magnetic intensity is also known as magnetizing force and magnetic field strength. इसको भी कर लो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर सवाल में दिया होगा तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन सा पैरामीटर तुम ले रहे हो। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बी नॉट बाय म्यू नॉट, ठीक है। चलो, देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब कौन सी चीज, कोई चीज कितना मैग्नेटाइज होती है, कितना मैग्नेटाइज होती है, उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ऑलराइट। So intensity of magnetization is given by I. Okay, intensity of magnetization of a magnetized substance represent degree to which the substance is magnetized. It is defined as the net magnetic moment developed per unit volume. ठीक है, it is denoted by I. So I is equals to m by v, magnetic moment per unit volume. That is I, intensity of magnetization, ठीक है। डन, इसका भी यूनिट है एम्पियर पर मीटर।
vector quantity, because magnetic moment is a vector quantity. डन, आगे बढ़े, चलो। Yes. अब आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन बी, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन बी, तो किसी के भी थ्रू अगर कोई सब्सटेंस को तुम मैग्नेटाइज कर रहे हो, कोई सब्सटेंस को तुम मैग्नेटाइज कर रहे हो, तो उसके अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी। एक तो पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से ही थी, और दूसरी जो उसमें इंड्यूस हुई है वो वाली मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो उसके अंदर कितना इंडक्शन के बाद कितना हुआ उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, एक तो हो गया पहले वाला जो बी नॉट था ओरिजिनल, और दूसरा म्यू नॉट आई, है ना, जो कि इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो। मैग्नेटिक इंडक्शन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस of induction crossing per unit area normally through the magnetic substance. It is denoted by B. Magnetic induction B is the sum of magnetic field B naught and the magnetic field mu naught I produced due to the magnetization of the substance. ठीक है। So B equals to B naught. B naught is H क्या था, B naught upon mu naught. So B naught is mu naught H, है ना, and mu naught plus mu naught I. तो ये हो गया B equals to mu naught H plus I. नोट कर लो। सिंस दिस इज बी, इसका यूनिट है टेस्ला। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड। Done. This is induction per crossing per unit area. Okay, sir. So if they given a question that B is a certain value, how do we know if it's the magnetic field or the magnetic induction? No, it is magnetic induction is magnetic field, na? B is magnetic Oh, okay, field, sir. which means it is the magnetic lines of force per unit area. लिखा है ना, Yeah, that it okay. is known as magnetic field. Okay, sir. ठीक है। Magnetic flux density, flux is phi, which is equals to B into A, B cross A. ठीक है, उसका यूनिट होता है वेबर। हो गया, नोट हो जाए तो बता देना। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो उसमें दो हो जाएंगे, एक तो जो ओरिजिनल थी फील्ड लाइन वो, और दूसरी जो मैग्नेटाइज हुई उसके बाद जो फील्ड लाइन बनी वो। तो इट बिकम्स बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। ओके गाइस, टेल मी व्हाट इज एच। व्हाट इज Magnetic एच एंड व्हाट इज intensity. आई? चैट पे लिखो, चैट पे प्राइवेटली मेरे को लिखो, व्हाट इज एच एंड व्हाट इज आई। तो अच्छा हुआ मैंने सवाल पूछ लिया, because lot of people are writing I is equals to current. I is not equal to current. I is equals to intensity of magnetization. ठीक है, H is equals to magnetic intensity, I is magnetization intensity. तो एक इंटेंसिटी H जो वो इंटेंसिटी जिससे मैग्नेटाइज होगा, और दूसरी है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी I, which tells us कि कितना मैग्नेटाइज हुआ। ठीक है, I is not current.
3-4 people wrote current. लिख लो वहां पे, H is magnetic intensity, I is magnetization intensity. Intensity of magnetization. हो गया? डन? ध्यान से लिख लो, इस पे सवाल आएंगे. चलो, अब आ रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजली अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तो होना चाहिए था H, लेकिन हुआ I. तो कहोगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. हम तो ट्राई कर रहे थे कि भाई पूरा पूरा H हो जाए, है ना, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हमने उतना वहां पे इंड्यूस हो जाए, लेकिन कम हुआ, उससे I हुआ. सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी X को लिख लो. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू I बाई H. I का भी एम्पियर पर मीटर है यूनिट, H का भी एम्पियर पर मीटर है, इसलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कोई यूनिट नहीं है. ठीक है, लिख लो इसको फटाफट. तो बहुत ही सिंपल है इसको याद करना कि हम H के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन हमको मिला I, तो इसका रेशियो I बाई H इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. डन? आगे बढ़े. Yes. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज अनदर थिंग. परमिएबिलिटी इज कि भाई हम उधर जाने नहीं दे रहा वो हमको. फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने भेजी कितनी और वहां पहुंची कितनी. ठीक है, सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू. So once हाँ again, could you please go up? हाँ, Just 1 second, could you please go up? Could you please go up 1 second, sir? गो अप. I ओके. didn't get the. Done, sir. Thank you. Okay. So magnetic permeability mu, ठीक है, measure of conduction of magnetic field lines through a substance. Magnetic permeability of the magnetic substance is defined as the ratio of magnetic induction to magnetic intensity. ठीक है, तो B upon H. ठीक है, इसलिए B इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है ना, H इज NI, है ना, तो यहां से एनीवे म्यू इज इक्वल्स टू B बाई H. लिख लो उसको. दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दैट टेल्स अस कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जाने दे रहा अपने थ्रू. डन? चलो. The relative magnetic permeability mu R is the ratio of magnetic permeability to the permeability of free space. So mu R equals to mu by mu naught. ठीक है, दोनों dimensionless ही है, मतलब because दोनों का dimension same है तो mu R is dimensionless. ठीक है, all right. और mu की वैल्यू क्या थी, अभी हमने क्या बोला था? हाँ, B by H. B by H. तो ये हो गया B by H अपॉन B नॉट by H, तो इसलिए B by B नॉट हो गया ये. ठीक है, तो म्यू R इज इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल्स टू B by B नॉट. ठीक है,
अच्छा मेरे को फटाक से बताओ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या फॉर्मूला था? हाँ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या फॉर्मूला था? ओके, I by H. ओके, ठीक है। अब ये देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई, हमको पता था, है ना? B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई, और I इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू H, ठीक है, यहां से हो गया। इसको नोट कर लो, सिंपल मैथमेटिक्स है, यहां तक नोट कर लो। नाउ दिस इज द रिलेशन विच यू नीड टू रिमेंबर, relative permeability is equals to 1 plus magnetic susceptibility। बट इसको पूरा नोट कर लो, just in case they ask you to derive a relation between these two। हो जाए तो हाथ उठा देना, और कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना। हो गया? चलो ठीक है। क्वांटिटी ब्ला इज द एनालॉग ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पढ़ाया नहीं है तुमको अभी। ओके, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, नोट कर लो। Magnetic susceptibility is small and positive for paramagnetic and small and negative for diamagnetic। So diamagnetic वो होता है जो रिपेल करता है फील्ड लाइन को, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक वो होता है जो अट्रैक्ट होता है। इसलिए ये नेगेटिव है इसका, हम उसको चाह रहे थे इंड्यूस हो उधर, वो उल्टा इंड्यूस हो गया और रिपेल होने लग गया, ठीक है, लाइक दैट। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़े। अभी तक आ रहा है सब कुछ समझ में? कुछ डाउट? सब कुछ क्लियर? ठीक है, चलो ये सवाल,
magnetic field B and the magnetic intensity H in a material are found to be 1.6 Tesla and 1000 ampere per meter respectively. Determine the relative permeability mu R and the susceptibility xm of blah. Okay. B दिया है, H दिया है, mu निकालना है. B equals to mu H, खत्म है ना. B equals to mu R, actually B equals to mu H, वहां से निकाल लो. बन रहा है नहीं बन रहा? देखो B इज इक्वल्स टू म्यू H, ठीक है. तो म्यू इक्वल्स टू B बाय H, तो यहां से म्यू आ जाएगा, है ना. अभी म्यू बाय म्यू नॉट इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव, ठीक है. और म्यू रिलेटिव और xm में क्या फॉर्मूला है? हाँ, ओके, बन रहा है लोगों से, गुड. तो ये आ गया, रिलेटिव भी आ गया. म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस xm. हो गया? क्या? That's it. Clear? Okay. Awesome. Next question. Solenoid of 600 turns per meter is carrying a current of 4 ampere. है ना? N मिल गया, I मिल गया, N I मिल गया. Its core is made up of iron with relative permeability 5000. तो उससे क्या मिल गया? म्यू आर मिल गया. Calculate the magnitudes of magnetic intensity, intensity of magnetization and magnetic field inside the core. चलो, do it.
यस जसलीन करेक्ट। तो H तो डायरेक्टली आ गया है ना, H इक्वल्स टू NI 600 into 4 हो गया। फिर म्यू आर दिया हुआ है, अब क्या क्या निकालना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालनी है, H हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना है I, and magnetic field inside the core. हो गया, ये काफी सारे लोग से हो गया, ठीक है। H हो गया NI 2400, ओके। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस XM, XM इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, ओके। तो 5 ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। XM इक्वल टू I बाई H, I इक्वल टू XM इंटू H, तो ये हो गया I की वैल्यू, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना होना चाहिए था, म्यू नॉट H होता, बट परमेबिलिटी म्यू आर है, तो म्यू आर एक्चुअली म्यू H होएगा, है ना। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू आर इंटू म्यू नॉट इज म्यू, तो ये हो गया, ठीक है। डन। खुद से बन रहा है ना, कि देख देख के तो नहीं कर रहे, बिकॉज ये मैंने तुमको फाइल पहले भेजी हुई थी, खुद से बनाओ, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू फील कॉन्फिडेंट कि बन रहे हैं तुमसे सवाल, ठीक है, ठीक है। तो ये म्यू H है, बट म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, है ना, बिकॉज म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। डन, ओके, ऑलराइट। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अब यहाँ से थोड़ी थ्योरी है, वैसे तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, बट फटाफट कर लेते हैं जस्ट इन केस, फॉर्मूला ही है बस, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक जब नेगेटिव में हो, ठीक है, इसका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये नोट कर लो, ये टेबल नोट कर लो। दिस इज एप्सिलॉन, अगर उसकी परमेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है, नहीं सॉरी, ससेप्टेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है, तो फेरोमैग्नेटिक हो गया,
ठीक है, इस केस में की रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बहुत बहुत ज्यादा है 1 से। पैरामैग्नेटिक ऑलमोस्ट ठीक है, यहीं पे ये नेगेटिव है। हो जाए ये नोट तो हाथ उठा देना और समझ भी लो उसको, मतलब ठीक है। पैरामैग्नेटिक में जैसे मैंने बताया था, इसमें रिपेल हो जाता है, इसमें अट्रैक्ट होता है, इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ तो रिपेल हो रहा है उल्टा, ये रिपेल हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। Diamagnetic substances are those which have a tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field. When a bar of diamagnetic material is placed in a external magnetic field, the field lines are repelled or expelled, and the field inside the material is reduced. ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये सब कोर्स में नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ता अभी, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं यार, इतना पढ़ ही लिया तो फिर क्या। ओके, diamagnetic substances are those substances in which resultant magnetic moment in an atom is zero. तो एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, क्योंकि वो घूम रहे होते हैं और उनमें चार्ज है, तो टोटल magnetic moment in an atom is zero in diamagnetic substances. When magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction slow down, and those in opposite direction speed up. This happens due to induced current in accordance with Lenz's law. Thus, the substance develops a net magnetic moment in the direction opposite to the applied field and hence repels. Example है bismuth, copper, lead. चलो ये example लिख लो just in case. तो diamagnetic का example है bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen, water, sodium chloride. तो repel होंगे, ठीक है। Bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen, water, sodium chloride. Meissner effect, superconductors exhibit perfect diamagnetism, तो इसलिए वो एक दूसरे से वो उधर रिपेल होते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, Meissner effect में superconductor are perfect diamagnetic substances. Superconducting magnets have been used for running magnetically levitated superfast trains because they repel. ठीक है, paramagnetic, the substances which get weakly magnetized in the direction of external field when placed in an external magnetic field is called paramagnetic substance. ठीक है, तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट होता है, it's weakly magnetized. These substances have a tendency to move from a region of weak magnetic field to strong magnetic field, that is they get weakly attracted to the magnet. Okay, done. ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कॉपर क्लोराइड। हो गया, ये सब जो नोट्स बना रहे हो इसकी फोटो अभी खींच के मेरे को भेजना, ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से
कलरफुल अच्छे से मस्त तरीके से बनाओ। डन, चलो। Curie's law. Magnetization of a paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. Absolute temperature मतलब केल्विन पे जब देखते हो टेम्परेचर को तब absolute temperature T, ठीक है। तो हो गया मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू C B नॉट बाई T, और इक्विवेलेंटली magnetic susceptibility is equal to C mu naught by T, where C is Curie's constant। और ये डायग्राम बना लो। डन, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसको धीरे धीरे कर लेते हैं, 10 मिनट और लगेंगे फिर खत्म। आराम से कर लो। हो गया? ओके, मिटाता हूँ। The variation of intensity of magnetizations with B naught by T is shown in the figure. Okay, at a particular stage, all the atomic dipoles present in the specimen align in the direction of the external field, and this leads to saturation region. तो ये हो गया saturation region, है ना? जितना मैग्नेटाइज होना तो हो गया मैग्नेटाइज। Ferromagnetism. The substances which get strongly magnetized when placed in an external magnetic field are called ferromagnetic substances. They have strong tendency to move from a region of weak magnetic field to strong magnetic field. That is, they get strongly attracted to the magnet. चलो, ये फॉर्मूला नोट कर लो, Curie-Weiss law. Magnetic susceptibility XM of a ferromagnet in the paramagnetic region above the Curie point. Okay. At temperature which is higher than the Curie temperature. ये कोर्स में नहीं है तुम्हारे, इस बार डिलीट कर दिया है, बट जस्ट इन केस ये फॉर्मूले लिख लो, ठीक है? डन। C by T minus Tc is XM. चलो, ये सवाल करो। Solenoid having 5000 turns per meter
carries a current of 2 ampere. So N मिल गया, I मिल गया. An aluminium ring at temperature 300 Kelvin inside the solenoid provides the core. Okay. If the magnetization I is 2 into 10 to the power minus 2 ampere per meter, find the susceptibility of aluminium at 300 K. चलो करो. H मिल गया, I दिया हुआ है. बस ये वाला फॉर्मूला लगा के तुमको XM निकालना है. Justine has given an answer. 10,000. Okay. 2 into 10 to the power minus 6. Okay, I've shown the answer here. You can see the solution.
डन हो गया, देख लो। ओके, हिस्टेरेसिस कर्व बी और एच के बीच में कर्व है, इसको ड्रॉ कर लो एक बारी। बी और एच के बीच में कर्व है, इसको ड्रॉ कर लो। यहां से चालू हुआ, फिर वापस गया तो ये हो गया, फिर ये हो गया। चालू 0 से हुआ था, ठीक है। चलो बना लो उसको। फिर 2 पॉइंट्स होते हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं। y axis is b, x axis is h। इसको मेंशन कर लो, a b c d e, ये पॉइंट्स मेंशन कर लो। हो गया, ठीक है। चलो, so a hysteresis curve represents the relation between the magnetic induction B or intensity of magnetization I of a ferromagnetic material with the magnetic intensity H, ठीक है। तो B और H के बीच में। The graph shows the behavior of a material as we take it through one cycle of magnetization. Okay. An unmagnetized sample is placed in a solenoid and current through the solenoid is increased. The magnetic field B in the material rises and saturates as depicted in curve OA. यहाँ से rise होता है, उसके बाद ये saturate हो जाता है magnetic field inside the substance. Okay, ठीक है। Then at H equals to 0, B is not equal to 0. तो जब H को तुम 0 करते हो यहाँ पे, तो B 0 नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। That's called retentivity. तो ये वाले पॉइंट पे तुम कह सकते हो रिटेंटिविटी। तो वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिटेन कर रहा है, जबकि हमने H को 0 कर दिया, फिर भी उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है हमको, ठीक है। H इज क्या, IA है ना। IA को हमने 0 कर दिया, तभी भी हमको B दिख रहा है, तो उसको हम कहेंगे रिटेंटिविटी, ठीक है। Now the current on the solenoid is reversed. इसके बाद यहाँ से हम रिवर्स कर रहे हैं I को, तो इधर पीछे जा रहा है, इधर है ना। And slowly increased in the reverse direction. We again obtain saturation in the reverse direction at D. ऐसे यहाँ पे D पे आ गया वापस से, है ना। The value of H at C is called coercivity, ठीक है। तो यहाँ पे B 0 हो रहा है, लेकिन हमने H को कुछ दिया हुआ है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में I चल रहा है, इसको हम कहेंगे कोअर्सिविटी, ठीक है। डन। नाउ द करंट इज रिड्यूस्ड। अगेन कम करते 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 उसका पोलराइजेशन वापस चेंज कर रहे हैं, रिवर्स्ड। okay, the cycle repeats itself for a given value of H. B is not unique. तो अगर H कुछ भी है तो उसमें B यूनिक नहीं है ना, अलग अलग B बन रहा है, okay, but depends on previous history of the sample. This phenomena is called hysteresis, ठीक है। So for any amount of H, the value of B is not the same, and it depends upon the previous state of the sample, and that's why it's called hysteresis, ठीक है। नोट कर लो। It is found that the area of hysteresis loop is proportional to the net energy absorbed per unit volume by the material.
appears in the form of heat. Hysteresis loop for soft iron is large and narrow, whereas hysteresis loop for steel is short and wide. ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लो, सॉफ्ट आयरन का क्या है, स्टील का क्या है, ऐसे ड्रॉ कर लो. So Aryan is asking, so sir, so effectively can we ever bring the material back to the starting position? Yeah, after some time it will come back now. If you leave it and do not pass any IA through it, you do not put it inside the solenoid, you can take it out of solenoid and it will be back to its original position. ये ड्रॉ कर लो. तो जो नैरो वाला है ये, दिस इज सॉफ्ट आयरन. ठीक है, and this one is steel. ओके, डन. आगे बढ़े. तो हिस्टेरेसिस लूप किन दो पैरामीटर्स के बीच का ग्राफ है भाई, बताओ फटाफट. हाँ, एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है हिस्टेरेसिस लूप में, बताओ. हाँ, बी में दो, एक्स में, वाई में दो चीजें हो सकती है, एक्स में एक ही चीज है. एक्स में हमेशा एच है और वाई पे आई हो सकता है या बी हो सकता है. ठीक है, ओके, गुड रिया, गुड. ऑलराइट, तो ये बुक में दिया हुआ है, ये वाला पार्ट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, पढ़ लेना खुद से. ठीक है, और ये भी पढ़ लेना खुद से. खत्म हो गया चैप्टर. अब इसके बाद आई थिंक, हाँ हो गया, खत्म हो गया, डन. ठीक है, अब यहाँ से टॉपिक्स, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, इसी बुक में ही है, इनको कर लो आज. तो जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो याद हो जाएंगे और कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे तुम. ठीक है, तो अभी जो नोट्स बनाए मेरे को अभी फटाफट फोटो खींच के भेजो, उसके बाद क्लास खत्म होगी. फटाफट जो नोट्स बनाए वो खींच के भेजो, हर एक आदमी. पर्सनल पे मत भेजना, ग्रुप पे ही भेज दो, एक पीडीएफ बना के, या चलो ऐसे ही भेज दो, कोई बात नहीं, so that I can just see how you guys are making the notes. भेजो. So my notes are incomplete. I still have tiny bits here and there that I wasn't able to do at the proper pace. So करना था can I ना. finish the notes off and then send it to you?
ठीक है, फिनिश करके हेलो। भेजो, लेकिन एवरीबडी हैज टू सेंड। अभी अभी कर लो ना फिनिश, ये बुक भी दी हुई है मैंने तुमको, अभी कर लो। 5 बजे तक क्लास थी हमारी वैसे भी, so the book is already given to you on that हाँ group, हाँ just finish it properly quickly. Okay, what I'll do is I'll give you guys 10 minutes. You have the book. I'll give you guys 10 minutes, and in 10 minutes you send it. The class will be on till then. ठीक है, ये मैं Zoom on ही कर रहा हूँ, on रखा हुआ है, ठीक है। I'll give you 10 minutes. 4:30 हो रहा है अभी, तो 4:40 तक मेरे को भेज दो notes.
Oh damn. I don't know how many of you could hear me. I've been commenting on all the things which are coming. Till where do you guys hear? Did you hear what I said about Ria's thing and then everyone else's? Huh? Oh damn. I've been commenting on everybody's, man. I had muted myself. Okay, Ria, I was saying that ratios, you've not written the ratios. I, H, ये सब का formula नहीं है तुम्हारे उसमें. Okay. ठीक है, Ananya, very good, very detailed, but use 2 colors because it'll be easier for you to revise. Use 2 colors. Use a red color on this now so that you can make it like that. Okay, Jasleen. Okay, Jasleen, good. All right, cool. Jasleen का अच्छा है. फिर आर्यन एक तो तुमने वो ग्रे स्केल में भेजा है मेरे को. I hope you're using 2 colors because that's how it'll be easy for you to revise the formula. Okay, Siddharth, in your case this is very less notes. बहुत सारी चीजें और हमने डिस्कस की ना, जैसे रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड एक्सएम, इसका डेरिवेशन, यू नॉट रिटन दैट. नीड टू राइट ऑल दीस थिंग्स. H equals to ni भी नोट कर लो everybody. H equals to ni. Okay, Amla, good. Use 2 colors. You're not using 2 colors. And these questions that I give you, do it in a separate copy, and the notes, do it in a separate copy. I've been saying this. Jasmine. Okay, cool. Jasmine, use 2 colors. Okay, rest is fine. Cool. ठीक है, फिर इसी बुक में जो मैंने अभी बुक भेजा उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं. डू दोस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और ये चैप्टर तुम्हारा डन हो जाएगा. ठीक है. आई हैव नॉट स्टिल गॉटन इट फ्रॉम जिनेन एंड ऋत्विक. रेस्ट हैव सेंट. ठीक है, जिनेन और ऋत्विक भेज देना फिर. ऑलराइट, ओके, बाय बाय. So just a second, scanning it. ठीक है ना, भेज. Should I leave or wait? नहीं, you can Yes, sir, leave same. now. You can leave now, but send it on the group. ठीक है, चलो. Yeah, bye. Thank you, sir. Bye. Okay, sir. Thank you. All right, bye.